Good morning, everyone, all students. How are you? Are you all fine? Or are you enjoying your summer breaks? Yes, everyone, I am also enjoying here teaching you all in this class of spoken English where we are learning many new things in our day-to-day classes as I promised you in starting of this class. Yeah. Now, let me tell you, nice to meet you. Nice to meet you. You would answer, same here. Very nice. क्या आंसर देंगे आप? Same here. Okay. I hope everyone is getting the class and attending the class in daily routine, and also they are mentioning whatever I teach you here. जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसे आप सभी अपनी नोटबुक में मेंशन कर रहे होंगे और एक ही नोटबुक आपने मेंटेन की होगी एज आई टोल्ड यू. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लास, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट दिस क्लास एज वी आर अटेंडिंग हियर ऑन अपना स्कूल है वेयर वी आर इन ऑनलाइन समर कैंप. मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. I teach you here how to communicate in English whenever you want. Yeah. So now, today we are learning here very important topic that is on the board. We are learning here yesterday routine. Yes. Yesterday routine, my students. इट मीन्स yesterday जो दिन जा चुका है कल, उसका रूटीन हम कैसे बताएंगे किसी को? हाउ कैन वी टेल आर yesterday रूटीन टू अदर्स? दैट आई एम टेलिंग यू नाउ. आज मैं आपको वो बता रहा हूं. सो एवरीवन मस्ट नो दैट yesterday इज पास्ट, कि yesterday जो है वो पास्ट है. एंड इफ वी आर टेलिंग अबाउट आवर पास्ट तो फिर हम फॉलो करते हैं ऑलवेज हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि हमारे सामने रिटन है, which is written in front of you. This is our sentence structure to put up all these sentences to tell somebody about our yesterday routine. Yeah. So how do we speak up that? And when do we speak up? If someone asks you about your yesterday, suppose I am asking you a question at this time, how was your yesterday? Yes, please tell me, how was your yesterday? Rishabh is answering, I think. Rishabh, he is saying that was fine. Great. So if you are answering that was fine means आपका दिन तो कल का अच्छा ही रहा. But now if I ask you about your schedule of yesterday, how would I ask the question to you? My question will be, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Now you will tell me your yesterday routine, कि आपने मॉर्निंग अप टू नाइट कौन कौन से काम आपने किए आपके yesterday. तो आप मुझे बताएंगे अपने yesterday रूटीन में कि आपने मॉर्निंग अप टू नाइट क्या क्या किया. That is with this phrase. How can we put up the sentences? Very easily. Now let's see. If you say कि मैंने जो भी किया, मतलब कि आपने जो भी किया, आप कैसे बताएंगे? We are starting from those all actions जो कि हमने लर्न की थी for speaking daily routine. Yes. डेली रूटीन बोलने के लिए जो जो एक्शन वर्ड्स हमने यूज किए थे, हम उन्हीं को आज यूज करेंगे अपने yesterday रूटीन को बताने के लिए. Yes. तो हाउ कैन वी स्पीक अप दैट? तो हम इसे कैसे स्पीक अप कर सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट. सी, इफ द एक्शन वर्ड्स आर हियर, द वर्ब्स आर हियर, get up around 6 o'clock. Get up around 6 o'clock.
6 बजे के आसपास उठना, ये हमारी एक्शन वर्ड है जिसे हम अप्लाई करेंगे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे सामने रिटन है। ओवर हियर रीड आफ्टर सेकेंड, इट मीन्स दैट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यू ऑल नो वेरी वेल दैट ईच वर्ब हैज 3 फॉर्म्स। हर एक वर्ब की होती है 3 फॉर्म्स। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल अप्लाई हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I, you will tell about yourself. I, the main verb is get, तो हम उसके लगाएंगे सेकेंड फॉर्म एंड दैट इज got। तो हम स्पीक करेंगे I got up around 6 o'clock. Speak up now. I got up around 6 o'clock. I got up around 6 o'clock. Many students are making mistake. They are speaking I got up. I got up around 6 o'clock. भाई ये got नहीं है। If you speak this word, this is the word G-O-T. What do you pronounce this word? If you are pronouncing this word got, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, mend your pronunciation. Yes, mend your pronunciation. It means that कि अपना उच्चारण ठीक कीजिए, अपना उच्चारण सुधार लीजिए। Because this word is not God, क्योंकि भाई God तो हम किसे बोलते हैं? God तो हम इसे बोलते हैं। This is God and God means बकरी। So we will not pronounce this word God, we will pronounce this word God, और इसे हम क्या pronounce करेंगे? Gut, gut. What do you say? Gut. तो आपने बोला I got up around 6 o'clock. I got up around 6 o'clock. फिर से बोलेंगे I got up around 6 o'clock. Very nice. इसका मतलब आप 6 बजे उठे थे। अब आप ये बात बता रहे हैं yesterday के बारे में, मतलब कल के दिन के बारे में। So if you say कि मैं कल 6 बजे उठा, and you will say कि ठीक है, उसके बाद में क्या किया? अब उसके बाद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? I taught you in your daily routine classes. तो क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कर रहे हैं कि सर आई रिमेंबर। आई रिमेंबर, यस, आई रिमेंबर का मीन्स है कि मुझे याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कहेंगे? सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर। सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर कि सर मुझे याद नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर सॉरी मैं तो भूल गया। सॉरी सर आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट। सॉरी सर आई फॉरगॉट कि सर मैं इस बात को भूल गया। देयर इज नो वरी कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि उसके बाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद को हम कहते हैं आफ्टर that. What do we say? After that. Our sentence will be like this. I got up around 6 o'clock after that. कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठा, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ। तो फ्रेश होना, I told you earlier कि फ्रेश होने को हम बोलते हैं get fresh. What do we say? Get fresh. तो फिर गेट की हमें लगानी होगी फिर से वही सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेस्टिव की और उसमें हम लगाते हैं एक्शन की, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस, एक्शन और वर्ब दोनों एक ही बात होगी। एक्शन मीन्स ऑल्सो कार्य, क्रिया, एंड वर्ब मीन्स ऑल्सो क्रिया, राइट? सो नाउ हियर वी आर स्पीकिंग आई गॉट फ्रेश। आई गॉट फ्रेश। आई गॉट fresh. I am not saying got. I am saying I got fresh. You will also speak of that. Wherever you are sitting, wherever you are attending my class, please speak up after me. I got up. I got fresh. I got fresh. Yeah. मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद आप कहेंगे फिर, और फिर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर को हम इंग्लिश में कहते हैं then. तब या फिर, उससे हम इंग्लिश में कहेंगे then. तो आपने कहा फिर,
मैं मॉर्निंग वॉक पे गया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट, नॉट जाता हूँ कब बोलते हैं, जब हम कोई काम रूटीन में करते हैं, मतलब प्रेजेंट में हम बता रहे हैं, अपना डेली रूटीन हम बता रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, आई गो। लेकिन अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं गया था, मतलब कल, ओनली यस्टरडे की बात कर रहे हैं भाई। तो मॉर्निंग वॉक पर जाने को आखिर हम बोलते क्या है? आई मेड यू राइट, मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज गो टू मॉर्निंग वॉक, go to morning walk. So we will apply this action here. Go to morning walk, it means morning walk पे जाना, राइट। हम यहां पर यूज करेंगे मेन एक्शन गो की सेकेंड फॉर्म, एंड वो क्या होगी? What is second form of go? Any idea? If you have any idea, please raise your hands. Please raise your hands if you have the idea. तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अपने हैंड्स रेज कर रहे हैं, like this. Yes, I am asking to yes, Shamita, please tell. Shamita is answering. Going, not correct. Rishabh is answering. Gone, that's not correct. And Ruchi, yes, Ruchi, answer please. Ruchi is answering went. Yes, the word is here went. The word is here went. तो जब हम go की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो होगी went. Yes, तो हम स्पीक कैसे करेंगे? How do we speak of that? I went to morning walk. Speak up now. I went to morning walk. मैं मॉर्निंग वॉक पर गया, और गर्ल्स हैं तो गई, राइट। फिर आप कहेंगे और मैं अपने घर वापस आया 8 o'clock, तो आप कहेंगे मैं वापस आया। अब भाई वापस आने को क्या बोलते हैं वो हम पहले मेंशन कर लेते हैं। वापस आना इज कॉल्ड कम बैक, कम बैक होम। इफ यू से कि मैं घर वापस आया, तो दैट इज सेकेंड फॉर्म वी विल यूज ऑफ कम। तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम, लाइक दिस, CAME। तो हम यूज करेंगे यहां पर I came back home, I came back home। और अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपने घर वापस आ गया, क्योंकि आप खुद भी घर पे वापस आए हैं, आए थे, तो आप कहेंगे I came back to my home, I came back to my home। अगर आप my home बोलते हैं तब यहां पे आपको to लगाना पड़ेगा, और अगर आप my होम नहीं बोलते हैं, सिर्फ होम बोलते हैं, तो फिर आपको यहाँ टू नहीं लगाना पड़ेगा। ये भी ग्रामेटिकल रूल है। यस, तो होम से पहले टू नहीं आता है, बट अगर होम से जस्ट बिफोर हम लगाते हैं कोई पजेसिव प्रोनाउन, जैसे माय, योर, हिज, हर, एसेट्रा एसेट्रा, तो फिर हम टू लगाते हैं होम से पहले, राइट। तो अगर आप कहेंगे आई केम बैक होम, तो भी करेक्ट है। आई केम बैक to my home, to be correct, both are right। and now you will see, अब आप कहेंगे कि फिर मैं तैयार हुआ, फिर मैं तैयार हुआ। अब तैयार होने में भाई सारे काम आ गए कि आपने नहाया, ड्रेस पहनी, ब्रश किया, वो सब तैयार होने में आ गए, रेडी होने में आ गए। तो तैयार होने को एक्चुअली में बोलते क्या है? व्हाट डू वी से तैयार होना इन इंग्लिश? पहले प्रायोरिटी वो है कि हमें पता होना चाहिए कि जो भी एक्शन वर्ड यूज करना चाहते हैं उसे इंग्लिश में आखिर क्या बोलते हैं। व्हाट डू वी से तैयार होना आफ्टर ऑल इन इंग्लिश? यस, तो तैयार होना वी विल यूज लाइक दिस, गेट रेडी। व्हाट डू वी से? गेट रेडी। स्पीक अप नाउ, गेट रेडी। या सो
गेट रेडी होता है तैयार होना, बट ओवर हियर हम कह रहे हैं कि मैं तैयार हुआ, मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद में मैं तैयार हुआ, तो हुआ दैट इज कॉल्ड सेकेंड फॉर्म। और अगेन गेट की हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे दैट इज गॉट, तो हम बोलेंगे आई गॉट रेडी, आई गॉट रेडी, आई गॉट रेडी, यस यू आर राइट, आई गॉट रेडी। लाइक दिस वी कैन से आई गॉट रेडी मतलब कि मैं तैयार हुआ, वेरी नाइस। एंड इफ यू से कि उसके बाद, अबे उसके बाद को क्या कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके बाद को बोलते हैं आफ्टर दैट, क्या बोलते हैं आफ्टर दैट। तो आप कहेंगे कि उसके बाद में मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि आप तैयार होने के बाद में करते हैं ब्रेकफास्ट, तो आपने ब्रेकफास्ट ही किया होगा कहीं पे भी जाने से पहले, या फिर नहीं भी जाते तो घर पर भी अगर आप रहते हैं तो ब्रेकफास्ट तो आप करते हैं। अब ब्रेकफास्ट करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट आई एम राइटिंग हियर। This is written here, take breakfast, have breakfast, दोनों में से एक बोलेंगे, या तो take और या फिर have, उसके बाद breakfast, yes। So this word is not breakfast, भाई ये वर्ड जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं है, why? क्योंकि अगर हम इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे स्पीक करेंगे ब्रेकफास्ट, दिस इज द वर्ड ब्रेकफास्ट, यस। ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता, तो आप बोलेंगे कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, आप आइदर दिस और दैट आप यूज करेंगे और उसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो टेक की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है टुक, क्या होती है टुक, तो आप यूज करेंगे आई टुक ब्रेकफास्ट, फिर से स्पीक करना है, आई टुक ब्रेकफास्ट, यस एवरीवन आई टुक ब्रेकफास्ट, कि भाई मैंने सुबह का नाश्ता किया। आफ्टर दैट यू आर सेइंग, अगर आप यूज कर रहे हैं लाइक दिस सेकेंड एक्शन हैव, तो इसकी सेकेंड फॉर्म आप लगाएंगे और हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड, सो यू विल यूज दैट आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। आप में से कुछ किस तो ये भी सोच रहे होंगे कि सर ब्रेकफास्ट करने को तो ईट ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना सर, तो ईट कहाँ लगाया आपने, ईट, तो बता दूं आपको मैं कि इन मॉडर्न इंग्लिश, इन स्पोकन इंग्लिश ईट ऑब्सलेट हो चुका है, इसलिए हम अब खाने पीने के लिए ईट वर्ड का यूज नहीं करते स्पीकिंग में, हम यूज करते हैं या तो टेक का या फिर हैव का। तो हैव की सेकंड फॉर्म हो गई हैड और टेक की सेकंड फॉर्म हो गई टुक, तो आपने बोल दिया कि आई हैड ब्रेकफास्ट, वेरी नाइस। फिर आप उसके बाद आपने क्या किया, फिर आप कहेंगे कि सर उसके बाद मैंने, क्योंकि आजकल तो आप स्कूल जा नहीं रहे, तो कल भी आप नहीं गए थे, आप घर पर ही थे, और घर पर हम करते क्या है, हमारा शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, स्कूल हमें जाना नहीं है, हम घर पर ही अपना स्टडी करते हैं, होमवर्क करते हैं, लर्निंग करते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, स्मार्टफोन में सॉन्ग्स सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने फैमिली से गॉसिप करते हैं, अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ में गेम्स खेलते हैं, ये हमारा डे का शेड्यूल होता है, राइट। तो इस तरह से हम करते हैं अपना दिन एंजॉय, और आपने कल भी कुछ ऐसा ही किया होगा एज आई थिंक, तो आप कैसे स्पीक करेंगे। आपने कहा कि फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि न्यूज़पेपर पढ़ने को स्पीक क्या करते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने को हम स्पीक करते हैं रीड न्यूज़पेपर, राइट, रीड न्यूज़पेपर, वेरी नाइस। तो आप इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। भाई एक बहुत ही कमाल की बात है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट कि ये जो एक्शन वर्ड है रीड, इसकी सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही फॉर्म की स्पेलिंग होती है सेम, लेकिन
फर्स्ट फॉर्म और सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन होता है डिफरेंट। फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं रीड और सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं रेड। व्हाट डू यू से? रेड। या तो हम स्पीक करेंगे आई रेड न्यूज़पेपर। आई रेड न्यूज़पेपर। स्पीक अप नाउ। आई रेड न्यूज़पेपर। ग्रेट। आप इसे रेड नहीं बोलेंगे, रेड, इसे रेड नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे रेड। रेड, यस। सो आई रेड न्यूज़पेपर लाइक दिस। और मैं समझ गया कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। फिर आपने 2 घंटे 2 आवर्स आपने की स्टडी। और भाई स्टडी तो स्टडी होती है इन इंग्लिश, तो आप कैसे कहेंगे? आई स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है IED, लग जाता है उसमें वाई को रिमूव करके, तो फिर हमारी वो बनी स्टडीड। यस, तो हम स्पीक करेंगे आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। कितने? 2 आवर्स। तो आप बोलेंगे आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। दैट्स फैंटास्टिक। कि भाई 2 आवर्स की स्टडी क्यों करते हैं आप? कभी 3 आवर्स भी कर लिया कीजिए, और या फिर समटाइम्स आप उसे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट ये 2 आवर्स वाली साइकोलॉजी जो है वो सेट है। एवरी पेरेंट ऑल्सो कीप सेइंग दैट स्टडी फॉर 2 आवर्स। हर एक पेरेंट भी आपसे यही कहते हैं कि भाई 2 घंटे पढ़ाई कर लो, और आप भी यही कह रहे हैं कि सर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। तो आप बोलेंगे आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। मैं आपकी बात समझ गया। आई हैव गॉट इट। आई हैव गॉट इट। या अब आप ये कहेंगे कि सर उसके बाद आफ्टर दैट पढ़ाई के बाद आपने क्या किया? 2 आवर्स स्टडी कर ली, उसके बाद क्या किया? उसके बाद आप ये कहेंगे कि मैंने अपना होमवर्क किया। अब भाई होमवर्क करने को आखिर क्या कहते हैं? होमवर्क करने को कहते हैं डू होमवर्क। डू होमवर्क इज कॉल्ड होमवर्क करना। तो आप कहेंगे कि मैंने होमवर्क किया, डू की लगाएंगे सेकंड फॉर्म, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्या होती है? डिड। तो आप यूज करेंगे इसे आई डिड। डू का बन जाएगा डिड सेकंड फॉर्म, क्योंकि वहां पे हम यूज कर दिए एक्शन सेकंड फॉर्म, बिकॉज वी आर स्पीकिंग यस्टरडे रूटीन, और यस्टरडे रूटीन जब भी बताएंगे तो सेकंड फॉर्म से बताएंगे। यस, तो हमारा सेंटेंस क्या है? आई डिड होमवर्क। आपने किसका होमवर्क किया? खुद का ही किया होगा, तो आप चाहे तो माई भी लगा सकते हैं। आई डिड माई होमवर्क। आई डिड माई होमवर्क। वेरी नाइस। कि भाई मैंने मेरा होमवर्क किया। गॉट इट। आप ये कहेंगे कि सर मैंने हाफ एन आवर टीवी देखी, क्योंकि टीवी भी देखते ही हम जब हम घर पे होते हैं, तो हम फॉर टाइम पास या फिर फॉर अ गुड पास टाइम हम टीवी देख लेते हैं, अपना फेवरेट प्रोग्राम देख लेते हैं टीवी पर। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स इन समर ब्रेक्स में अभी टीवी देखकर भी एंजॉय कर रहे हैं, तो आई एम सेइंग दैट कि एनहेंस योर हैबिट ऑफ वॉचिंग प्रोग्राम्स इनटू इंग्लिश। अपने जो भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स, मूवीज एक्सेट्रा, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में आप वॉच कर सकते हैं। देयर इज अ ऑप्शन ऑन योर टीवी सेट टू चेंज द लैंग्वेज। तो जो भी कार्टून मूवीज आप देख रहे हैं, प्लीज कन्वर्ट देयर लैंग्वेज इनटू इंग्लिश एंड वॉच देम इन इंग्लिश। आप उनकी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, चैनल की लैंग्वेज को, और उसे इंग्लिश में वॉच कीजिए, सो दैट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन वुड बी बेटर एंड योर ग्रेस्पिंग पावर वुड बी बेटर, जिससे कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो और आप इंग्लिश को और अच्छे से समझ पाए। राइट नाउ ओवर हियर यू आर सेइंग कि मैंने टीवी देखा। अब टीवी देखने को क्या बोलते हैं भाई? सी टीवी? नो नो, नॉट एट ऑल। तो फिर क्या बोलते हैं? लुक टीवी? नो वेज। तो फिर क्या कहते हैं भाई? टीवी देखने को कहते हैं वॉच टीवी। यस, तो आपने देखा टीवी, तो आप यूज करेंगे वॉच की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हर एक एक्शन की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। तो हम बोलेंगे आई वॉच्ड टीवी। ईडी लगेगा इसमें, ईडी लगेगा इन सेकंड फॉर्म। तो आप बोलेंगे आई वॉच्ड टीवी, आई वॉच्ड टीवी, आई वॉच्ड टीवी। हाफ एन आवर के लिए तो आप बोलेंगे फॉर हाफ एन आवर।
फॉर हाफ एन आवर। फॉर हाफ एन आवर का मीन्स है आधे घंटे के लिए देखा भैया आपने, ठीक है, समझ गया। आई गॉट इट। मैं आपसे ये कहूंगा कि और क्या हालचाल है आपके, क्या हालचाल है, तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ आर यू, तो आपने कहा सर आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, एंड मैं रिप्लाई करूंगा आई एम ऑल्सो फाइन। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा भाई और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ डेज। और अगर मैं इसी बात को इन अमेरिकन इंग्लिश आपसे कहूंगा तो व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप, तो फिर आप मुझे कहेंगे कि सर कुछ खास नहीं चल रहा, सर नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। आपने कहा सर सब कुछ हमेशा के जैसा ही है, जो कल हुआ था वो याद हो रहा है, वही कल होगा, क्योंकि कुछ खास चेंजेस नहीं है। सर समर ब्रेक है, घर पे ही है, एंजॉय कर रहे हैं, तो जो एंजॉयमेंट येस्टरडे किया था वो आज भी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर एज यूजुअल। व्हाट डू यू से? एज यूजुअल। वेरी नाइस। तो आपने कहा एज यूजुअल, इट मीन्स दैट कि सब कुछ हमेशा के जैसा ही है। ग्रेट। अब आप बताने वाले हैं मुझे कि उसके बाद आप करते हैं क्या, टीवी देखने के बाद आप क्या करते हैं। आप ये कहेंगे कि सर फिर मैंने रेस्ट किया। अरे चलो रेस्ट तो बाद में करेंगे, पहले तो हमने लंच किया होगा, है ना, तो आपने क्या होगा लंच पहले। अब जैसे हम यहाँ पे बोला कि टेक या फिर हैव के बाद में ब्रेकफास्ट, वैसे ही हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट की जगह बोल सकते हैं लंच। तो आप बोलेंगे टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक, तो आप बोलेंगे आई टुक लंच, आई टुक लंच। और आप अगर चाहें तो हैड की सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं, वो है हैड। तो आपने कहा आई हैड लंच, आई हैड लंच कि मैंने लंच किया। ओके। आप ये कहेंगे कि सर उसके बाद में मैंने रेस्ट किया, तो आप कहेंगे आफ्टर दैट आई। अब रेस्ट करना क्या होता है भाई, रेस्ट करने को आखिर क्या बोलते हैं, दैट्स इट हियर, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। अब टेक की फिर से यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म, और वो होती है टुक, तो आप बोलेंगे आई टुक रेस्ट, आई टुक रेस्ट। वेरी नाइस, आई टुक रेस्ट, मैंने रेस्ट किया। और फिर आप कहेंगे कि मैं इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने गया। खेलने जाने को क्या बोलते हैं, गो टू प्ले बोलते हैं, गो टू प्ले। तो आप यहां पर यूज करेंगे गो टू प्ले बट इन पास्ट फॉर्म। तो गो की सेकेंड फॉर्म आप यूज करेंगे, प्ले की नहीं, बिकॉज टू के आफ्टर हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी सेंस हो, या फिर कोई भी टाइम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, इसलिए टू के बाद में प्ले को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन गो जो है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बना कि मैं खेलने गया, आई, एंड गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, तो आप बोलेंगे आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले। किसके साथ, मेरे दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। स्पीक अप नाउ अगेन, I went to play with my friends. Very nice, you are right. अब आप बोलेंगे कि सर उसके बाद ना उसके बाद मैंने इवनिंग में अपने ब्रदर के साथ में गॉसिप। अब गॉसिप खुद एक इंग्लिश का वर्ड है जो कि कैचिंग वर्ड है, और उसकी सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं वेरी इजीली, गॉसिप्ड। तो आप बोलेंगे आई गॉसिप्ड with my brother, gossip with anybody, किसी के साथ में भी गॉसिप करना मतलब कि गपशप करना। तो आपने कहा I gossiped with my friends, मैंने अपने दोस्तों के साथ में गॉसिप किया मतलब कि गपशप किया। ऐसी बातें जो कि नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं फॉर टाइम पास। ओके, तो आपने कहा आई गॉसिप्ड विद माय फ्रेंड्स या आई गॉसिप्ड विद माय ब्रदर। ग्रेट। अब फिर आप कहेंगे कि फिर मैं अपने फैमिली के साथ में मैंने डिनर किया, तब बोलेंगे आई टुक डिनर विद माय फैमिली।
अब जो टाइम आपने जिस टाइम आपने डिनर किया वो टाइम बता सकते हैं, अराउंड 8 o'clock, अराउंड 7 o'clock, अराउंड 9 o'clock, जो भी आपका टाइम है। फिर आप कहेंगे कि फिर मैं घूमने गया टेरिस पर, तो आप बोलेंगे आई वेंट टू वॉक, चलना। तो आपने कहा आई वेंट टू वॉक ऑन माई टेरिस। फिर आप कहेंगे कि फिर मैं सोने चला गया, तो सोने चला गया, गो टू स्लीप। यस, प्ले की जगह आप लगा देंगे स्लीप, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू स्लीप। और जब आप सोने चले गए तो आपका शेड्यूल हो गया फिनिश्ड, और अब आप लास्ट में बोल देंगे थैंक यू। लाइक दिस आप पुटअप करेंगे यस्टरडे रूटीन, और आप बनाएंगे अपने खुद के सेंटेंसेस। जैसे आपने सीखा, आप खुद सेंटेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपने आप अपने सेंटेंसेस पुटअप कर लेंगे। एट होम यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ देम, एंड finally you will be ready to speak up your yesterday routine anywhere before anybody, right? At last I would say to you, do practice at home, speak up your yesterday routine with the help of it, and keep having fun. Have a nice day. Goodbye.